وسط ایشیا میں دو بڑے تاریخی اور مشہور دریا بہتے ہیں، دریا جیہوں جسے اب دریائے آمو کہا جاتا ہے اور دوسرا دریا ہے سیہوں جسے اب سیر دریا بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیانی علاقہ ماورا النہر کہلاتا ہے۔ سمرقند، کوکن، بخارا اور ترمز جیسے مشہور تاریخی شہر اسی علاقہ میں واقع ہیں۔ اسی دریائے آمو کے کنارے موجودہ ازبکستان میں اورگنج نام کا شہر بھی آباد ہے۔ یہی اور گنج سلطنت خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جرافیشر۔ دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں سلطنت خوارزم شاہ کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، سلطنت خوارزم کی تاریخ سکندر اعظم سے بھی تقریباً 1000 سال پرانی ہے، یعنی خوارزم شاہ کا لقب سکندر اعظم سے بھی قریباً 1000 برس قدیم ہے۔ زمانہ اسلام میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے سپہ سالار فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم باہلی کے ہاتھوں سلطنت خوارزم اسلامی مملکت میں شامل ہوئی۔ خوارزم کے حکمران خلافت اسلامیہ کے صوبیدار یا گورنر کی حیثیت رکھتے تھے۔ امویوں کے بعد سلطنت خوارزم عباسیوں کے ماتحت آ گئی۔ عباسیوں کا دور زوال میں جب بغداد کا خلیفہ کمزور ہو گیا اور مملکت اسلامیہ کے علاقے یکے بعد دیگرے خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تو خوارزم شاہ نے بھی اپنی خود مختار حیثیت کا اعلان کر دیا۔ بغداد کی مرکزیت سے الگ ہو جانے کے بعد خوارزم کے حکمرانوں نے آس پاس کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عباسیہ کے علاقے جو مرکز کمزور ہونے کے سبب آزاد ہو گئے تھے وہ رفتہ رفتہ سلطنت خوارزم میں شامل ہو گئے تھے۔ خوارزم کی سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئیں اور آخر کار 1200 سن عیسوی میں سلطان علاء الدین محمد شاہ کے خوارزم شاہ بن جانے کے بعد سلطنت خوارزم کی سرحدیں تیزی سے وسیع ہونے لگی۔ دوستوں، ماورا النہر کے اکثر علاقے جن میں سمرقند، بخارا، کوکن، ترمز، بلخ، تاشقند اور فرغانہ وغیرہ شامل تھے، اورگنج کی سلطنت کے اندر آ گئے۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے ترکان خطا کے خلاف عظیم کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح سلجوقی ترکوں کی مقبوضات بھی خوارزم شاہ کے پاس آ گئی۔ ادھر افغانستان کی غوری سلطنت کا سلطان شہاب الدین غوری اسماعیلی باطنی فرقہ حسن بن صباغ کے فدائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس طرح غوری سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی اور پھر خوارزم شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے غوری سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ دوستوں، پاکستان کے سرحدی علاقوں تک خوارزم شاہ کی مملکت پہنچ گئی۔ اس طرح موجودہ سرحدی اعتبار سے سلطنت خوارزم اپنے زمانہ عروج میں موجودہ پاکستان، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے کچھ حصہ پر محیط تھی۔ علاء الدین خوارزم شاہ اور خلیفہ بغداد میں جب کلش اب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے خلافت عباسیہ کو بھی اپنی سلطنت کا باجگزار بنانا چاہا۔ اس نے خلیفہ بغداد کو پیغام بھیجا کہ خوارزم شاہ کا نام جمعہ کے خطبہ میں خلیفہ کے ساتھ شامل کیا جائے اور خلیفہ بغداد سلطنت خوارزم کا مطیع ہو جائے۔ علاء الدین خوارزم شاہ کے والد کے زمانے میں بھی خوارزم اور بغداد میں لڑائیاں ہو چکی تھیں، مگر اب خوارزم شاہ بغداد کو اپنا مطیع کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح خلیفہ بغداد اور خوارزم شاہ میں شدید روایت کے اختلافات پیدا ہو گئے اور تاریخ نے دیکھا کہ ان اختلافات کے نتیجہ میں مملکت اسلامیہ کے بڑے بڑے شہر تتاریوں کے ہاتھوں برباد ہو گئے۔ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، ان کے سروں سے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ آخر کار نہ خوارزم شاہ بچا اور نہ ہی خلیفہ بغداد، دونوں ہی تتاریوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئے۔ تتاری قبائل کی چنگیز خان کی سربراہی میں یلغار کمزور اور ناتواں خلیفہ بغداد کو اپنا رقیب اور دشمن سمجھنے والا علاء الدین خوارزم شاہ احمق تھا۔ اس کا اصل دشمن تو صحرائی کوپی میں مسلمانوں کا خون پینے کی تیاریوں میں مصروف تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔
दोस्तों, चीन के शुमाली इलाके में एक वसी और अरीज सहरा वाक़ है जिसे सहराए गोपी कहा जाता है। इसका कुछ हिस्सा मंगोलिया में भी शामिल है। ज़माना कदीम में इस सहरा में वहशी और जंगजू कबाइल आबाद थे। सहरा की सख्ती से ये कबाइल बहुत सख्त मिजाज हो गए थे। आसपास के इलाकों में लूट मार और कत्लो गारत गिरी करना उन्हें मरगूब था। चीन की तारीखी सताई सल्तनत के हुक्मरानों ने दीवार चीन कायम करके उन्हें सहरा तक महदूद कर दिया था। कबायली तर्ज जिंदगी में मरकजियत नहीं होती, बल्कि ताकत ही असल सरचश्मा होती है। सहराए गोपी में मुगल कबीला सबसे ताकतवर था। 1154 ईस्वी में इस कबीले के सरदार के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम तेमुजन रखा गया। जवान होकर तेमुजन ने मुगल कबीले के तमाम दुश्मनों को शिकस्त दे दी और एक तवील और सब्र आजमा जदोजहद के बाद गोपी और मंगोलिया के आवारा कबाइल को एक झंडे तले मुनज़्ज़म करते हुए उन सब का सरदार बन गया। सहराए गोपी में वाहिद इलाका जो कुछ सरसब्ज और शहरी बुदबाश लिए हुए था वो करम के नाम से मशहूर था। तेमुजन ने तमाम कबाइल जिनमें मुगल, एगोरो वगैरह शामिल थे, उनके सरबराही और मरकजियत का ऐलान करते हुए करम को अपना दारुल हुकूमत करार दिया और चंगेज खान का लक़ब इख्तियार किया। चंगेज खान का चीन पर हमला और खताई सल्तनत का खात्मा। दोस्तों, चंगेज खान को इल्म था सरकश मंगोल सिर्फ इसी सूरत में काबू में आ सकते हैं जब उन्हें जंग और जदल में मसरूफ रखा जाए। उसे मालूम था कि अगर उन्हें फारिग छोड़ दिया गया तो वो आपस में लड़ने लगेंगे। कुछ इस वजह से और कुछ हवस से माल और जर के तहत चंगेज खान ने मंगोलिया की हदूद से निकलने का फैसला किया। उसका पहला शिकार पड़ोस में वाक़ चीन की खताई सल्तनत बनी। कई साल की खूनरेजी के बाद चीन का शहनशाह दाई तांग दारुल हुकूमत बीजिंग छोड़कर फरार हो गया और चीन का वसी और अरीज मुल्क चंगेज खान की मुमलकत में शामिल हो गया। चीन पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान की सल्तनत ख्वारज़म पर निगाहें जम गई। चीन की फतह के बाद सल्तनत करम की सरहद ख्वारज़म के मुसलमान इलाकों को छूने लगी थी। मुल्क गिरी की हवस चंगेज खान को सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ वो तातारी कबाइल को मुसलसल जंग व जदल में भी मसरूफ रखना चाहता था। चुनाचे अब उसकी निगाहें सल्तनत ख्वारज़म के इलाकों की तरफ मरकूज हो गई। ख्वारज़म के शहर समरकंद, बुखारा, ताशकंद और गंज वगैरह इस वक्त आलम इस्लाम की तहजीब और तमद्दन का मरकज थे। इल्म हुनर में यकता अफराद दुनिया भर से इन इलाकों में अपने फन की दाद हासिल करने आते थे। तिजारत का मरकज होने के सबब माबरल नहर का ये शहर माल और दौलत की फरावानी रखते थे। चंगेज खान ने इसी माल दौलत और हवा से इक़्तिदार के तहत इन सरसब्ज़ शादाब शहरों पर को बर्बाद कर दिया। 1218 ईस्वी में सल्तनत करम और सल्तनत ख्वारज़म के दरमियान आज़ादाना तिजारत और आमदोरफ्त का मुआहदा तय पाया। चंगेज खान ने मुस्लिम इलाकों पर हमला आवर होने से पहले उन शहरों के महल, वकू और जोग्राफियाई हालात से मुकम्मल आगाही चाहता था। चंगेज खान का तरीक़ाकार यही था कि जासूसों के जरिए इन इलाकों से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही हासिल कर ली जाए जिन पर हमला आवर होना मकसूद हो। तिजारत के मुआहदे के तहत ताजरों के रूप में ततारी जासूस सल्तनत ख्वारज़म में फैल गए और सल्तनत के जोग्राफियाई हालात के बारे में मालूमात करम पहुँचाने लगे। खलीफा बगदाद नासिरुद्दीन की चंगेज खान को आलम इस्लाम पर हमला आवर होने की दावत। इस सारी दास्तान में सबसे अलमनाक पहलू खलीफा बगदाद नासिरुद्दीन को शर्मनाक किरदार है। उसकी दावत पर चंगेज खान का आलम इस्लाम पर फौरी हमला आवर हो गया, वरना शायद आलम इस्लाम को चंद अशरे इस बर्बादी से बचने के लिए मिल जाते। तफसील इस हादसे की कुछ यूं है कि ख्वारज़म शाह सुल्तान अलाउद्दीन का खलीफा नासिर को अपनी इताअत का पैगाम देना इस बात का खमास था कि वो खलीफा नासिर की इताअत से आज़ाद हो चुका है। इस वाक़े की तफसील पहले आ चुकी है। अब खलीफा बगदाद को बराह रास्त ख्वारज़म शाह से खतरा लाहिक था। चंगेज खान का ख्वारज़म शाह से मुआहदा दोस्ती भी
खलीफा नासरुद्दीन के लिए वैसे परेशानी था। दूसरी तरफ खलीफा का ज़बरदस्त जासूसी निज़ाम उसे बता रहा था कि हकीकत में चंगेज़ खान का मुआहदा दोस्ती और तिजारत एक फरेब है और असल में चंगेज़ खान की नज़रें सल्तनत ख्वारज़म के शहर पर हैं। खलीफा नासरुद्दीन के जासूसों ने उसे यकीन दिलाया कि अगर चंगेज़ खान को यह पैगाम पहुँचा दिया जाए कि ख्वारज़म पर हमला करने की सूरत में खिलाफत बगदाद गैर जानिबदार रहेगी तो वो ख्वारज़म पर फौरन हमला कर देगा। और हकीकत भी यही थी कि चंगेज़ खान को मुसलमान इलाकों पर हमला आवर होने की सूरत में आलम इस्लाम की तरफ से मुश्तरका मज़ामत का शदीद खौफ लाहिक था। इस पस मंज़र में खलीफा बगदाद नासरुद्दीन ने वो इक़दाम उठाया जो उसके मनसब के शयान शान पर गज़ न था। ख्वारज़म की सल्तनत से लाख खतरा सही मगर वो बहरहाल मुसलमान हुक्मरान था। उससे मामलात गुफ्तो शनीद से हल करना बेहतर था। मगर खलीफा बगदाद ने कराक्रम एक सफारती वफद रवाना किया और खलीफा पैगाम चंगेज़ खान को भिजवाया कि अगर वो ख्वारज़म पर हमलावर हो गया तो बगदाद की खिलाफत उस ज़मन में गैर जानिबदार रहेगी। यानी खलीफा ने चंगेज़ खान को आलम इस्लाम पर हमला आवर होने की दावत दी और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि बगदाद की खिलाफत जो आलम इस्लाम का सियासी मरकज़ है इस सिलसिला में खामोश रहेगी। यह सिफारतकारी बड़े ड्रामाई अंदाज में की गई क्योंकि बगदाद की एलची को करम के लिए ख्वारज़म के इलाके से गुजरना था। इसलिए खलीफा का खुफिया खत जो सल्तनत ख्वारज़म के लिए मौत का पैगाम था उसे छुपाना मुमकिन न था। ख्वारज़म के हुक्काम वैसे ही बगदाद वालों से मशकूक थे। इस खुफिया पैगाम को पोशीदा रखने के लिए अजीब व गरीब तरीके इख्तियार किए गए। कासिद के सर को मोड़ दिया गया और गंजे सर पर सुई को गर्म करके खलीफा का पैगाम लिख दिया गया। पैगाम के साथ खलीफा की मोहर को भी अंगार करके मस्बत कर दिया गया। इस तहरीर को किसी खास तेल से छुपा दिया गया। जब कासिद के बाल अच्छी तरह बढ़ गए तो इस करम रवाना कर दिया गया। इस तरह तारीख का यह खुफिया तरीन पैगाम चंगेज़ खान को पहुंच गया। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।